अब आते हैं हम लोग हाइड्रो electricity, a major source of energy in India. Introduction to hydroelectricity is one of the most significant renewable source of energy in India. It is generated by harnessing the kinetic energy of fast flowing water, making it a sustainable and eco-friendly power source. Hydroelectricity is crucial in India's energy sector due to its renewable nature and ability to generate large amount of power without emitting greenhouse gases. Why is hydroelectricity important for India? Renewable sources, since it relies in flowing water. Hydroelectric power is replenishable and sustainable. Eco-friendly है. Unlike fossil fuel, hydroelectric projects do not emit carbon dioxide or other harmful pollutants. Economic viability, post-establishment, maintenance costs are relatively low, and operational longevity is high. Peak load capability can rapidly adjust output to meet peak electricity demand. Support for agriculture. Many hydroelectric projects serve as multi-purpose projects, also assisting in irrigation and flood control. Energy security reduces dependence on imported fossil fuels and promotes energy self-reliance. Geographical suitability. Hydroelectricity is predominantly harnessed in mountains and hilly areas where rivers exhibit the steep gradient and high flow rate. ठीक. Northern India, the northeastern state and part of southern India are ideal for hydraulic electricity. The first hydroelectric plant in India was established in 1897-98 at Sidrapong near Darjeeling, West Bengal. देखिए, असम में माकुम में वो कुआं खोदा गया था तेल वाला, वैसे ही दार्जिलिंग में हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट लगाया गया 1897 में, ठीक, नियर दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल. This plant marked the beginning of India's journey towards utilizing hydropower for electric generation. It remains historically significant as it demonstrated the feasibility of hydroelectric city in India. Major hydroelectric project in India. India now hosts several large multi-purpose hydroelectric projects that serve power generation, irrigation and flood management. जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, सतलज रिवर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब. वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट. कैपेसिटी अराउंड 1325 मेगावाट. 10 लाख एकड़ मतलब वो करता है, सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को. दामोदर वैली प्रोजेक्ट DVC, लोकेटेड इन दामोदर रिवर इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस 1948. हेल्प्स इन इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड पावर जनरेशन. ठीक है. कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट located in Assam on the Kopili River, managed by North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO). Key for power supply in northeastern region, managed by Northeastern Kopili हाइडल प्रोजेक्ट असम में है, कोपिली रिवर पे, मैनेज्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन. टहरी डैम प्रोजेक्ट भागीरथी रिवर, उत्तराखंड. टहरी कहाँ? भागीरथी रिवर. वन ऑफ द tallest dams in the India with height of 260.5 meters. कैपेसिटी 1000 मेगावाट है. नाथपा झकड़ी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, सतलज रिवर पे है ये भी. नथपा झाकरी कैपेसिटी 1500 मेगावाट, लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया. नथपा झाकरी सतलज हिमाचल में, लोकेटेड ऑन कृष्णा रिवर. श्रीशैलम कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश में है. 1670 मेगावाट. मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर. भाखड़ा नंगल और श्रीशैलम कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश.
नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC लीडिंग PSU इन है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2005 में आया था। हाइड्रो पावर पॉलिसी 2008 में आया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इंटीग्रेट इरिगेशन बेनिफिट ऑफ मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। वेयर इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज लोकेटेड? काठगोदाम में नहीं, ट्रॉम्बे में नहीं, नवेली में भी नहीं। नवेली में लिग्नाइट का वो होता है। कोयना, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन प्लांट। कोयना रिवर, महाराष्ट्र, largest hydro, it is the largest hydroelectric power plant in Maharashtra, managed by Maharashtra State Electric Board. The Koyana Dam is concrete gravity dam that plays a significant role in both power generation and water storage. Capacity 1960 megawatt. कोयना, नवेली, तमिलनाडु, थर्मल पावर स्टेशन है और लिग्नाइट माइनिंग है। नवेली, काठगोदाम, टाउन ऑफ उत्तराखंड, गेटवे ऑफ कुमायूं रीजन। काठगोदाम अभी तक मैं बिहार में जान रहा था, लेकिन है ये कहाँ, उत्तराखंड में। ट्रॉम्बे लोकेटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र, नोन फॉर ट्रॉम्बे थर्मल पावर स्टेशन एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, देखिए राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर हाइडल पावर स्टेशन, रावतभाटा, राजस्थान, built on the Chambal River, 50 kilometers from Kota. It is the part of Chambar Valley Development Project. Serves both irrigation and power generation. ये ग्रेविटी मशीनरी डैम है। कौन सा है? ग्रेविटी मशीनरी डैम। तो ये रावतभाटा में है, चंबल रिवर पे, ठीक। कोटा बैराज है, पार्ट ऑफ चंबल वैली प्रोजेक्ट बट नॉट द राणा प्रताप सागर। उदयपुर जयसमंद डैम है यहाँ। बीकानेर एरिड क्लाइमेट। जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन चंबल। जवाहर सागर डैम इज लोकेटेड ऑन चंबल रिवर, राजस्थान। Part of Chambar Valley Project Development Project which include गांधी सागर, राणा सागर एंड कोटा बैराज। गांधी सागर तो मध्य प्रदेश में है और राणा सागर और कोटा बैराज राजस्थान में है। 99 मेगावाट कैपेसिटी है। द डैम सर्व्स इरिगेशन, पावर प्रोजेक्ट एंड फ्लड कंट्रोल। नर्मदा नोन फॉर प्रोजेक्ट लाइक सरदार सरोवर डैम। तापी होस्ट उकाई डैम। ताप्ती पे क्या है? उकाई डैम है। ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन गुजरात। माही बाजार सागर डैम इन राजस्थान। राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी प्रोजेक्ट ऑन चंबल रिवर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राणा प्रताप। ये कहाँ है? राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर डैम इज ग्रेविटी मशीनरी डैम built on the Chambal River in Rawatbhata and Rajasthan. It is the second dam on the Chambal Valley project after Gandhi Sagar Dam. गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है। पर्पज पावर जनरेशन, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। 172 मेगावाट का है ये। मध्य प्रदेश है गांधी सागर डैम ऑन चंबल रिवर। उत्तर प्रदेश चंबल रिवर पे कोई ऐसा वो नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। व्हाट इज द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? लगभग 10% है। तो देखिए पहले क्या है, पहले थर्मल है, फिर भूल गया, न्यूक्लियर का 3% है। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर लगभग 10.6%, ठीक, इन 2016-17, ठीक। एज ऑफ 31 December 2023 द टोटल installed capacity in India was 428,000.27 megawatt, out of which hydroelectric
पावर कैपेसिटी इज 46,910, मतलब वही है लगभग. पावर इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ग्रिड स्टेबिलिटी एंड मैनेजिंग पीक लोड. लगभग 10.6%. ठीक है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया. इंडिया रैंक्स अमंग द टॉप कंट्रीज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन. मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेट हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, कर्नाटक एंड केरला. Hydroelectric power contributes energy security, sustainable development, help in carbon emissions, and India's climate goal. Environment impact, loss of flora and fauna, displacement. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इसको मैनेज करता है. ठीक है. हाइड्रो पावर पॉलिसी 2018 में आया. ओके, तो ये हम लोगों का कंप्लीट होता है. थैंक यू, बाय बाय.